Before starting this course on career counseling, it is extremely important to understand why you should take your career choice seriously. In this video, we will help you understand the importance of making the right career choice for yourself. So, why is your career choice so important? It is important because it determines a lot of things in your life, including number 1, quality of life. Your career choice plays a huge role in deciding where you live, how flexible your life is, and the kinds of things you are able to do in your free time. Number 2, identity. Ask any elder person about their career and they will tell you about it as a part of their identity. They'll say something like, I am a journalist, instead of, I report news. Notice how everybody asks you, what do you want to be when you grow up? And not, what do you want to do when you grow up? This shows that your career choice shapes your identity. Number 3, impact. Every human life touches thousands of other lives in so many different ways. If you select any 60-year-old person who is about to retire, take a time machine, find him as an infant, throw that infant into trash, and then come back to the present day, you'll find that a countless number of things around you have changed. So whatever career you choose, the world will be affected by it. Anything that determines your quality of life, your identity, and the impact that you make should be taken very seriously. And that includes your career choice also. So we hope that this short video could help you understand the importance of making the right career choice. Having done that, we will now move forward to start our career counseling course. We are pretty excited and we hope you are too. So, let's begin. See you. Good evening, everyone. Welcome to day 59 of Probono's live podcast. सबको स्वागत है, all the audience members, Aditya, Pragya, and of course, Hanif is with us today, who is an educator. First of all, thank you so much for being with us today. Thank you for taking time to speak with us. Welcome to our podcast. मैं introduce कर देता हूँ हनीफ जी को. So Hanif started his steps towards development sector in 2007 when he taught kids in tribal belt of South Rajasthan. And it gave him a vision to serve for the betterment of people. In 2012, he started his professional journey in development sector with VBERC as a research assistant in mathematics and worked with different state governments on curriculum development for children and teachers, conducting teacher trainings. Yep. He then worked as a program leader and mentored 7 Gandhi Fellows in Rajasthan. He has immense interest in making mathematics joyful, interesting and interactive. To pursue his love for mathematics, he worked with Jodo Gyan and lots of strategies about teaching and learning mathematics. He also worked with ISLI for 2 years as a manager and worked with school principals on their leadership development. Before joining ISDM, he worked as a program coordinator for Education Quality Foundation of India and then attended summer school in Indian Institute of Management in Udaipur to enhance his understanding of development sector, and all experiences have given Hanif resilience, power to overcome any situation while working. Hanif, thank you so much again for being in our podcast. तो जितना मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपका, उसके अलावा if you can introduce yourself अपने खुद के शब्दों में and address our audience, please. Thank you so much. Thank you for inviting me here. I'm glad to be live and talking to people around. Yeah, you have shared so many things from the day one of my journey in development. I think everyone born in development enjoy the development from day one as a social life. Right? So I think everything has already covered up. I can just say one thing, that
I have born in that family who is working in social sector from last 35 years. My day one of life on this earth started with struggle. Struggle to stay alive, stay connected to earth. He always connected to people and with the people. That's the Hanif. And today I am here. I am working with the girls in rural India for their betterment of education. The rest, whatever you shared, is bang on. मैं तो हनी जी सबसे पहले obviously you're into mathematics. Completely मेरे opposite है. I'm nowhere close to mathematics. I keep telling 9th maths fail हूँ मैं. So I have nothing to do with maths except for 2 + 2 = 5. Besides that, लेकिन आपने आपका entry कैसे हुआ? Obviously, you know, from your journey, if you can give us a story as to how you entered into the field of development and education. Yeah. So as I said, my father works in social sector and he's working in social sector from last 35 years. Although his interest is politics, but that's the good part of politics where he's working for the rights of people. So whatever he was doing, I was part of till the time I was with him in my city in Udaipur. I come from Udaipur, the city of lakes in Rajasthan. So I was with him, I enjoyed the part with the people around. So I always love when I am with people. And that's the big part for me to enter into development sector. Then there was education till the 12th in Udaipur, then went to Kerala for post-graduation. Before that, I was doing graduation in Jaipur. So all these things happened. But somewhere in 2007, as you said, I got chance to teach the tribal children with my father, absolutely. And that was the chance when I saw, we say that there is everything and everything has reached the deepest corner of India. Somewhere it's not true. The things are still on the path to reach. And when we talk, we go, we see, we do ourselves and immerse with the people around, then we understand what struggle they are facing. I can say about education, where I was teaching those children and I saw that there are issues coming up. But then education came. I went for my post-graduation. When I came back, I got a chance to start working in education sector. So that's where the VBRC come in, Vidyavan Education Resource Center. There is a person called Hridayakant Diwan, and he works in education from last 40 years almost. So that was my chance to work with him. That journey started with him, where, as you said, mathematics, the down corner. So for so many people, because the mathematics has made people's life hell, because mathematics comes in dream and neend bhi ud jati hai log. But yeah, there basically the idea behind mathematics, how we can make it more meaningful and joyful. And that comes when we understand mathematics more deeply, because you can see mathematics around your life. Around you, there is a mathematics. If we are able to connect mathematics to whatever we see around, the mathematics become very joyful. So that's where I think my connect with mathematics comes. My journey began in education as a mathematics content writer. The NCF, National Curriculum Framework, came in 2005. And the major thing which they talked about mathematics is how you can use context to understand mathematics. And that's what we did when we were working to write the content for different education department of states. And there, I also learned mathematics more deeply with all joyness and meaningfulness. In my life, I use that X, Y, Z, usko guna kiya, uska answer nikla, kaam khatam. But that's not mathematics. So yeah, so my learning also enhanced. As I say, I work at both the part, in rural India and the urban India. There are things which are easily available in urban part, which are not there in rural. And there basically struggle comes. If we talk about the schools in rural India, the resources are not very easily available there. And when we work with them, we understand what they need. Right?
I think one part, I say myself always an apprentice to apprentice. That's what bring to me how I can learn from a learner. Right? So whenever I went to rural India, I saw that little girl or little boy. They always taught me something, and I enjoy working with them. So that's my journey. What brought me back to learning, right? Learning on informal ways, like ISDM and IIM Udaipur. Because somewhere I come from science background. I did my post graduation in biotechnology from Kerala, and suddenly into education, right? Education वो भी रोड पे लोगों के साथ एक लेबोरेटरी में काम करने वाला बंदा इन विट्रो से इन विवो आ गया आप बोल on field with the people and real struggle. There is no ideal world. Ideal world हमारा सपना है. तो यही आनंद है जब वापस आए, जब दुनिया के साथ काम करने लगे तो बहुत सारी चीजें जानने को मिली. और जब ISDM और IIM का ऑप्शन मिला, so I went and joined it. Because somewhere I was thinking, whatever I learned from the practical life, they need to understand on theory base, theoretical understanding. And when I am able to understand, make link between practical and theoretical life, there will be more perspective, more clear understanding, more big holistic picture, and there will be more ideas how I can go and immerse with people and work for them. I can't say work for them, I'm working for us. But they are not only the beneficiary, I am the beneficiary as well. So we all are participants for building the country, this world and all around. Yeah, that's what Hanif. Great, बहुत बढ़िया. So guys, if you अगर आपके कोई भी सवाल होंगे in this particular field, that is today we are going to discuss careers in education and the development sector and everything related to that. So definitely आपके कोई भी सवाल है, we've had educators, we've had people from the development sector. I don't think we've had a conversation that encapsulated both of them together. तो आई थिंक बहुत ही अच्छा कॉन्वर्जेशन होगा. प्लीज आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लगा दीजिए. we'll definitely get to those. So with that being said, I want Aditya to take it over now. Aditya, over to you. Thank you so much, Saman, and welcome everyone to the show. Thank you so much for coming. Thank you so much, Hanif, for being here with us. Thank you. So हनीफ, आपकी जर्नी सुन रहा था और आपने जैसे कि कहा कि आप from a scientist, from a biotechnology professional, you shifted to education. और आपने एक और चीज कही कि वो पढ़ाने में या जब आप गांव में किसी लड़की को देखते हो पढ़ते हुए तो आपको अच्छा लगता है. And I think that's what you're doing right now. You're serving the girl education wing of the rural areas. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने काम शुरू किया, तो और ये सवाल मैं हर किसी से पूछता हूँ जनरली, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है. तो आपने जब डेवलपमेंट सेक्टर ज्वाइन किया, वो भी एडुकेशन में, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार पैसे कमाने का थोड़ा तो मन है मेरा भी, या मैं मतलब ऐसा नहीं है इस फील्ड में पैसा नहीं है, बट देन इफ वी सी द स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि इफ वी कंपेयर इट टू अ फील्ड लाइक इंजीनियरिंग लेट्स से, या फिर इफ वी कंपेयर इट टू अ फील्ड लाइक इवन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा तो इसमें पे कम है for equal amount of work. So आपने क्या ये नहीं सोचा कि I think आदित्य नेटवर्क प्रॉब्लम था, अपना क्वेश्चन आखिरी में थोड़ा मिस आउट हो गया था. If you can repeat the question towards the end. Sure. तो मैं पूछ रहा था कि आपका जब ज्वाइन करने का डिसीजन फ्रेम हो रहा था फॉर द डेवलपमेंट सेक्टर एंड द एजुकेशन सेक्टर, क्या आपने ये नहीं सोचा कि कि इसमें पैसा अगर कम मिलेगा तो how will I manage? Yeah, all these things, did it ever come to your mind? Yeah, okay. So money, right? So I will just start from my father. My father did civil engineering. Civil engineering, he was working in PWD, the government department in Udaipur, right? But his entire interest was working for people and their human rights. He left that job and he started working. So honestly, as I said, my day one of birth, my mother and father was having nothing in their pocket when I got birth.
born in this world, and the struggle for money begins from there. But in my life, I never had that struggle, never felt that, because there were people around. When I started working in education sector, I started honestly saying from 6,000 per month. But जब वो 6,000 हाथ में मिला ना, so that was enough, because the entire satisfaction was for working for education as a discipline for me to start my journey in development sector. So that thing never came to my mind in the beginning. Later on, when life has become more settled down, things have started coming up. There was some time when money issue comes up कि पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलता तो अच्छा रहता. तो मुझे लगता है कि अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं कम हो और आपको ऐसा लगता है कि जो आपको मिल रहा है उससे आपकी जिंदगी आराम से निकल सकती है, तो जितना पैसा मिले उससे खुश रहते हैं लोग. राइट. तो आपने सेल्फ कल का डिस्कशन अगर मैं वापस लाऊं विद मिस्टर सेन, कल हम बात कर रहे थे, द क्वेश्चन वाज व्हाट इज द अमाउंट और व्हाट इज द पेमेंट जो कि एक लीडर चार्ज करता है. फॉर अ गुड लीडर एक अप्रोप्रिएट पेमेंट क्या होता है, you know, how much would you pay him? And everybody, we were like, I think the payment that we decided on was ki love, respect and happiness, these three. और उसके साथ में ऑब्वियसली थोड़ा पैसा मिलेगा तो आज रात को सब्जी के बदले चिकन खा लेंगे बेसिकली. वैसे द मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, बट द हैप्पीनेस एंड द लव एंड द रिस्पेक्ट दैट यू गेट, वो सबसे बड़ी चीज होती है. एंड आई थिंक दैट इज एविडेंट आपके स्टेटमेंट से. या बैक टू आदित्य. I just want to add one more thing. Love, happiness. One more thing you said. Love, happiness, and respect. Respect, satisfaction, right? Because we work in development sector because we have values and principles. Like I have values of empathy and compassion, and that compassion comes from my entire pain, my life pain, my journey pain, right? And empathy for people, how I can love and imagine the life they are going through, you know? And I can put myself into their shoes and see the life from their own shoes and their eyes. So there, I think love, happiness, satisfaction, and the last thing I still forgot again. But yeah, the satisfaction is immense. Right. I think ये सेल्फ सफिशिएंसी की बात आपने शेयर की कि मेरे को अगर 6,000 भी मिले, so that's enough for me if I have served the society well. This is very difficult to find in today's times, क्योंकि इतना WhatsApp स्टेटस शेयरिंग हो रहा है, लोग सैटरडे संडे को पब्स जा रहे हैं, देखकर थोड़ा तो लगता है यार काश मैं भी. तो ऐसा नहीं है कि एडुकेशन में, सो यू नो व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन इज, जो ऑडियंस है हमारी वो ये ना सोचे कि एडुकेशन में पैसा नहीं है या फिर एडुकेशन में लोग भूखे बैठे, ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, एक ये माइंडसेट की बहुत जरूरत है आई थिंक, कि जो मेरे को लगता है, एंड आई थिंक हनीफ आल्सो शेयर्ड, कि एडुकेशन में सबसे पहला प्रायोरिटी, इनफैक्ट किसी भी फील्ड में बट मोर सो इन एडुकेशन, कि हम एक एम्पैथी, एक कंपैशन का माइंडसेट लेकर जाए कि वहां पे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और हमें सिस्टम में एक पॉजिटिव बदलाव या एक पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड लाना है. और हनीफ, इससे एक और सवाल याद आता है मुझे. मैं कॉलेज में था और मैं ऐसे, ये प्रो बोनो का ही बिजनेस प्लान था तब, इसका नाम मैंने कुछ और रखा था और मैं इसे पिच कर रहा था कुछ इन्वेस्टर्स के सामने. करीब 12 इन्वेस्टर्स मेरे सामने बैठे थे और उससे पहले 10 कुछ प्लान्स ऑलरेडी पिच हो चुके थे. मैं 11वां था, तो मैं पिच कर रहा हूँ, 5 मिनट है मेरे पास, तो 5वें मिनट में ही 2.5 मिनट पे, मतलब 5 मिनट के पिच में 2.5वें मिनट पर मुझे रोक दिया गया और मेरे से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो. तो मैंने बताया कि मैं करियर बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को. तो एक इन्वेस्टर पीछे से बोलता है कि यार, आई हैव ऑलरेडी सीन 9 प्लान्स इन एजुकेशन आउट ऑफ द फर्स्ट 10. एजुकेशन इज डूइंग जस्ट फाइन. वर्क ऑन अ रियल प्रॉब्लम. इस पर आपका क्या ओपिनियन है? I can understand the place that person was coming from, right? And the understanding which he or she has from development sector. But education is doing fine, right? Education is doing fine. That's the big question, whether education is doing fine or not, and whether education is very small factor to whatever happening. Because if I take one part, like skill training in India, कि हम skill based training की बहुत बात करते हैं, but education plays a great role to that skill training.
अगर एजुकेशन जिस तरह की मिलनी चाहिए लोगों को, बच्चों को बेसिकली एंड द प्राइमरी लेवल, राइट, इफ आई टॉक अबाउट फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Teachers who work with primary class children are more professional. They are getting more money also on the case of compensation, and they are more skill based because primary children are very important, right? And if we start the education from that base with the right ways and methods, then skill training तो वो अपने आप जब जरूरत होती है तो वो skill acquire करने वाली एबिलिटी आती है. तो हर जगह एजुकेशन है. आप चाहे वो इन्वायरमेंट लेके आओ तो भी एजुकेशन है, आप वो चाहे कोई हेल्थ लेके आओ तो भी एजुकेशन है, आप कुछ भी लेके आओ उसमें बिना एजुकेशन के वो नहीं चलता. दूसरी चीज, इफ आई टेक ओनली दैट सेंटेंस, एजुकेशन इज डूइंग फाइन, एजुकेशन इज नॉट डूइंग फाइन, ये मेरा पर्सपेक्टिव है. यू कैन डेफिनेटली काउंटर इट, बट एजुकेशन इज नॉट डूइंग फाइन बिकॉज देयर आर, first of all, education has not reached the last mile. If I talk about the entire chain of people, it might have doing very good in urban area, but it's not doing very good in the far most rural area, right? On the school level, उसमें बहुत सारे struggles. कोई स्कूल बहुत अच्छा है क्योंकि वो रोड पे हाईवे चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे टीचर आ सकते हैं, और ऐसे ऐसे स्कूल में जहाँ पे कोई टीचर नहीं पहुंचा, ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है, ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है. एंड यू नो इन इंडिया फाइनेंशियली there are a lot of percentage of people who are not able to give fees to schools. चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में भी फीस कई बार लगती है, प्राइवेट में तो लगती ही है, और उसको भी कई बार नहीं दे पाते. तो बहुत सारे इश्यूज हैं, बट एजुकेशन इज डूइंग फाइन. A big question for me. I also have to reflect on that and see where we are able to do fine. Because if I talk about myself, our organization, we are working in rural area of 11 states in India. And whenever I went to these areas where we are working for educating the girl child, I see the real situation. अगर माँ बाप इलिटरेट हैं जो खुद नहीं पढ़े, तो बच्चा अगर उनका पढ़ रहा है और बच्चे को जब सपोर्ट की जरूरत होती है तो कौन देगा सपोर्ट? सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है. there are so many things which are reinforcing the education. There are so many things which are not able to reinforce the education in the right direction. Yeah, that's what I believe. Right. Even इस पर मेरा मानना भी बहुत हद तक I would agree with हनीफ कि education, उस दिन मेरे को बहुत बुरा लगा था एक्चुअली. मैंने उसके बाद की स्टोरी शेयर नहीं की बिफोर हियरिंग फ्रॉम हनीफ. तो मेरे को एंड आई विल जस्ट थिंक अलाउड, मेरे को उस दिन क्या लगा था, मुझे लगा था एक नंबर का बेवकूफ इन्वेस्टर है और इससे तो जिंदगी में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी. अगर इसके पास पैसा है और ये देने को भी तैयार हो, मैं हाथ जोड़ दूंगा, सर रहने दो, आपके दिमाग है ही नहीं आप में. बिकॉज मतलब उस दिन मेरे को इतना गुस्सा आया था लिटरली. अभी मेरे को ऐसा नहीं लगता बिकॉज ऑब्वियसली बहुत वक्त हो गया चीज को बीते हुए, अभी 7-8 साल हो गए. बट उस टाइम मेरे को बुरा इसलिए लगा था क्योंकि एक मतलब अगर उसके बाद मैं 11 स्टेट के अलग अलग गांव में गया हूँ, और जैसे कि आपने कहा, आपने तो और करीब से देखा एजुकेशन इकोसिस्टम को, बहुत पहले से काम कर रहे हो इसमें. अब मैंने भी जो देखा है, मेरा भी यही थॉट है कि अभी एजुकेशन में बहुत ही सारे इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक एजुकेशन की ही अभी पहुंच हर जगह तक नहीं पहुंची है. हमारे देश में जहां पर 75% ऑफ जनरल ग्रेजुएट्स, 75% ऑफ टेक्निकल ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल, 85% ऑफ जनरल ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल. प्लस अभी कोरोना के चलते हमको क्लियर दिख रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूर से भी नहीं था हमारे पास, दूर से भी नहीं. रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स के पास घर पे मोबाइल फोन्स तक नहीं है. हम कहाँ एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें. पहले तो उन तक एक मोबाइल तो पहुंचे. तो अभी ऑनलाइन एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर उन तक सही तरीके से पहुंचाने में काफी वक्त है. अभी इनफैक्ट आई वुड नॉट नेम द स्कूल्स एग्जैक्टली, बट मैं ऐसे ऐसे गांव के स्कूल्स में जा चुका हूँ हरियाणा में
जहां पर दे डिड नॉट इवन हैव अ ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम्स. तो मैं सोच रहा था कि चलो मैं तो करियर काउंसलिंग करने आया हूँ, लेकिन ये बच्चे पढ़ते क्या है, ब्लैक बोर्ड ही नहीं है क्लास में. सो बाहर, और एंड आई हैव फोटोज विद मी जहाँ पे मैं बाहर पेड़ पे लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ. तो पेड़ का तना है, द स्टेम ऑफ द ट्री, जहां पर मैं चौक से लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ. मैंने नलों, जहाँ पे नल लगे रहते हैं तो नल का वो सरफेस थोड़ा कॉन्क्रीट टाइप रहता है, मैंने नल के ऊपर लिख लिख के पढ़ा रखा है. ऐसा हुआ है गाँव में. तो अभी जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, obviously we are making progress. मैं ये नहीं बोलूंगा कि education is not making progress. There are people like Hanif, people like Vijaya, Sanjana, people who came last time also, who are working towards development, who are working towards education. लेकिन वक्त है अभी भी, बहुत एफर्ट और वक्त बाकी है, ऐसा मुझे लगता है. आपके भी पास भी जो भी कमेंट्स है, आप प्लीज हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, इज एजुकेशन रियली डूइंग फाइन और डू वी नीड टू एम्प अप आवर एफर्ट्स? With this, I think Samas, we have a few audience questions. हाँ, एक ऑडियंस क्वेश्चन के पहले आई वांट टू ऐड अ कमेंट टू व्हाट इज एक्चुअली लैकिंग इन एजुकेशन. Obviously, Hanif ji is definitely more experienced and he's been to more places than me, than I. Sorry, I haven't been to a lot of rural schools, so I won't credit myself to say okay that's what I've seen. I haven't seen, so I'm not going to comment on that. Lekin I myself have studied in government schools, like Kendriya Vidyalaya at the lowest level, and also I've studied in international schools in Hyderabad. So I think I can say first and okay, I've been in both the ends of the spectrum. So so that I do have an opinion where दोनों में ही lacking है. International school में you have all the opportunities, but then you're in a bubble of opportunities where you don't have exposure to the streets. जो कि you don't know how to talk to people on the road, or you don't know how to जो the way I would use, the way people would call it is the cunning nature or the street smarts. Basically वो होता नहीं है. They're too wrapped up in the bubble where they are being trained to get a job, to get a good position, management level, good salary and whatnot. But then if you throw them out onto the streets and let them live on their own, it would be a difficult task for them. Because I myself have been in a situation where I came out of the bubble, और मैं लोगों से बात करने को डरता था. I was literally like, okay, if my parents are not with me, I'm not going to speak anymore. घर पे रहूंगा, PS3 खेल के सो जाऊंगा. That was a mindset. And on the opposite end, government schools में या फिर the lower levels of the schooling system, वहाँ पे you don't have the exposure that you get in a international school. You have the street smarts. अगर उनको सड़क पे फेंक दो, they know how to survive. Definitely, they know how to deal with the society. लेकिन they don't have the exposure to get to the very high levels of their career, or they don't have the exposure or the knowledge or the contacts or the means or the resources to get to the very high positions. I think दोनों में lacking है. Skill training, that is obviously there on both the sides. Skill training इसी में भी नहीं है, उसी में भी नहीं है. Things are changing slowly, but I think slowly the population इतना है, and I think we can't wait for the next decade to slowly take things over. I think we need to do okay next academic session, in the next 18 months, okay, change needs to be done somewhere. I think that needs to be the approach. Okay, there are a few audience comments. Let me read them out. Firstly, let me say hi to all the regulars, Anita ji, Pushkar da, Chika ji. Of course, you're always there. Let's see. And also, Brijesh Prasad says, Hanif Paliwal looking good, with a smiley emoji. Okay, let's see. Hanif ji, आपके लिए question आया है from Bhadra Chaudhary, who says, hello Hanif, I have two questions. As you have diverted from biotechnology to education sector, what are the skills that are needed to be learned by an individual? And there's a second question. And is it imperative to do MSW, that is Master in Social Work, to go further in the sector? Okay. Skills, competence, so many things. So, पहली चीज, I can say one thing. What I was having, that I was very comfortable working with people and understanding what they need and how I can support them. ये इतना ही स्किल था मेरे पास है. उसके अलावा knowledge, information, whatever I was having regarding the mathematics in beginning of my life, I used that. तो
एक तो इसके लिए है, दूसरी जो संबंध, राइट, आई एम सेइंग द राइट वे, ओके. Yeah, He said Samarth. one Yeah. thing: love, happiness, satisfaction जो मैंने जोड़ा, और एक और चीज थी, ये सब अगर मिल रहा है और अगर इसको हम एक्वायर करने की हमें एबिलिटी है, एंड वी आर कंफर्टेबल वॉट एवर वी आर डूइंग, एंड वी आर सेटिस्फाइड एट द नाइट व्हेन वी आर गोइंग टू स्लीप, काफी है skills comes slowly when you jump immerse yourself in the development sector. Education was one discipline, but honestly saying that wherever you jump, immerse and understand and build your perspective, skills come gradually you will understand everything. And second part, the MSW. Yeah. Okay, sorry. MSW, यार मैं कुछ नहीं कह सकता कि MSW कितना जरूरी है नहीं है. MSW एक, I think 15 years back when I was very young and talking to sometime to my father, he said कि जब शुरुआत हुई थी कि MSW बहुत एक बड़ा कोर्स होता था जो आपको डेवलपमेंट सेक्टर में अच्छी अंडरस्टैंडिंग, द स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग देता है कि मास्टर इन सोशल वर्क, कि सोशल वर्क होता क्या है, क्या क्या करना होता है, ऑल दोज स्किल्स थ्योरेटिकली देता है. बट एज आई सेड बिफोर, गो जंप एंड अंडरस्टैंड. I also came back and studied so many things in ISDM and IIM. तो जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ थी उसको जब मैंने थ्योरी से कनेक्ट किया तो ज्यादा मजा आया. तो गो वर्क फॉर 2 years, कम बैक, स्टडी, तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी विल कनेक्ट, उसमें ज्यादा अच्छी पिक्चर बनी, मजा आएगा करने. राइट. भद्रा चौधरी का एक और क्वेश्चन है. What is your take on the new education policy? I think the 2019 national education policy, I think अभी drafting में ही है, it hasn't been finalized, but what's your take on it? एजुकेशन पॉलिसी, ये बहुत कठिन सवाल पूछते हैं. सो आई कांट से, क्योंकि मैंने खुद ने भी देखा नहीं. इट्स ऑलरेडी इन ड्राफ्टिंग में. Once it will finalize, I will give my view. मैं बहुत स्लो आदमी हूँ पढ़ने लिखने के मामले में. मेरे को जो सही लगता है और जो मुझे लगता है कि लोगों के लिए उससे फायदा होगा और उनको सही लगता है, मैं वो करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ उसको आगे बढ़ाने. बाकी एजुकेशन पॉलिसी तो हर साल बनती है, बनाएंगे अपन, जब जरूरत होगी उसको उस हिसाब से पॉन्डर करेंगे. That's my understanding. Right. एजुकेशन पॉलिसी मैंने भी पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने द मेन पॉइंट्स आई हैव रेड. तो एक तो है विच इज माय फील्ड, मुझे ये सुनने में आया था, और मैंने पढ़ा भी कि स्पेशल एजुकेशन, दैट इज the policies and the protection for people with disability, the students with disability, इनके रिगार्डिंग कोई अलग सा सेक्शन, कोई स्पेसिफिक पॉलिसी कुछ मेंशन किया नहीं था. वो एक क्रिटिसिज्म था. दूसरा, डेफिनेटली ज़्यादा फोकस दिया गया था स्किल एजुकेशन पे. सो एंड स्किल एजुकेशन और थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी गई है स्कूल्स को इन दैट रिगार्ड्स कि वी गिव द फ्रीडम टू द स्कूल्स टू सी हाउ दे कैन कैरी फॉरवर्ड स्किल एजुकेशन एज दे सी फिट, क्योंकि ऑब्वियसली स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन नहीं लगा सकते owing to cultural differences, urban, rural, or the different resources available. So I think we are in the right direction, लेकिन definitely थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा. So I just have one thing for this CWSN, right? Child with special need. I can tell you both the perspective from urban and rural. When I was working in urban area, हर स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दिक्कत होती है ना, और उनके लिए स्पेशल एजुकेटर चाहिए होता है, पर हर स्कूल के पास नहीं होता. और जो बाकी हमारे रेगुलर टीचर्स हैं, they might be having no less skills to work with those children. या तो फिर भी कुछ मेरा आपको अर्बन एरिया में मिलेंगे ऐसे टीचर. इफ आई गो टू रूरल एरिया, कोई नहीं है बस. वहाँ तो पहली बात तो टीचर नहीं है, टीचर है दे हैव नो स्किल टू वर्क विद द चिल्ड्रन हु हैव स्पेशल नीड्स. तो और जिस तरह की सिचुएशन है इंडिया में, जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, इस तरह के बच्चे बढ़ेंगे, इस तरह के बच्चों की तादाद बढ़ेगी. और उसके लिए उसको जब आपको टैकल करना है तो यू नीड टू हैव अ बेटर स्ट्रेटजी. I have not gone through new education policy.
when I will go, I will definitely share what where is lacking. डेफिनेटली हम वेट करेंगे आपका ओपिनियन ऑन द एजुकेशन पॉलिसी. डेफिनेटली जितना जल्दी हो सके फाइनलाइज हो जाए एंड वी एक्चुअली गेट लुक एट एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट. हनीफ जी, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से है. तो एजुकेशन सेक्टर में नाउ व्हेन वी लुक एट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, में दोनों क्लब कर देता हूँ. एंड यू नो एक थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेट्स से आप एजुकेशन फील्ड में यू गो टू अ रूरल प्लेस, रूरल एरिया जहाँ पे बेसिक एजुकेशन की कमी है. यू टॉक अबाउट ब्लैक बोर्ड्स या फिर चार दीवारें भी सही से बनी नहीं रहती हैं. हम सिटी में बैठ के वी कैन टॉक अबाउट यू नो ऑनलाइन क्लासेस या फिर यू नो ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब वीडियोज एंड व्हाट नॉट. लेकिन जब हम रूरल एरिया में जाते हैं, वहाँ पे आदित्य खुद ने बताया कि पेड़ पे लिखते थे पढ़ाने के लिए. तो बोर्ड भी नहीं उसको होता. हाँ, तो आप फ्यूचर में इसको कैसा देखेंगे? क्योंकि वायरस भी अभी यू नो धीरे धीरे कम होने लग रहा है, थोड़ा सिटीज वगैरह ओपन अप हो रहे हैं. आई थिंक एजुकेशन और यू नो क्राउडेड प्लेसेस का अभी तक कोई न्यूज़ है नहीं. आई थिंक दैट इज इन द फोकस राइट नाउ. लेकिन हाउ डू यू सी द चेंजिंग डायमेंशंस इन द सेक्टर एजुकेशन में, स्पेसिफिकली रूरल एरिया में? तो एज आदित्य सेड कि वहाँ पे तो बोर्ड भी नहीं होता है स्कूल में, है ना. कई जगह बोर्ड होता है आदित्य, पर उस पर लिखोगे तो दिखता भी नहीं है कि क्या लिखा है. चौक से जब लिखते हैं तो कुछ दिखता भी नहीं. एंड ऑनेस्टली बिल्डिंग इज नॉट इनफ एज अ रिसोर्स टू टीच एनीवन, टू मेक देम लर्न. दूसरी चीज जो अब कोरोना वायरस और उसके साइड इफेक्ट, implications of coronavirus on education in rural area. One thing which is very clearly, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ होगा, 80% बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे बस. ये वही बच्चे पढ़ पाएंगे जिनके पास फोन है, इंटरनेट है, और फोन भी स्मार्टफोन है, और जो वो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके माँ बाप उनको कनेक्ट कर सकते हैं. ऐसा सब जगह नहीं होता. दूसरी चीज, अगर फोन होगा भी, आई कैन टेल यू माई एक्सपीरियंस जस्ट फ्यू डेज back. We were also collecting some information regarding the smartphone with the people we work, and we got the idea that 60% of people with whom we are working, they have a smartphone. तो वही कनेक्ट हो सकते हैं. ये भी एक गांव में एक जने की बात कर रहा हूँ. वहाँ पे बहुत सारे, एक गांव में अगर 1000 की पॉपुलेशन है तो 100 फैमिलीज हैं. 20 फैमिली के पास स्मार्टफोन होगा, इंटरनेट चले ना चले पता नहीं. तो एक तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल होने वाला है. अगर ये ऐसा ही रहा, बच्चे अगर स्कूल नहीं आ पाए, तो 80% बच्चों को एजुकेशन मिलने में दिक्कत होगी. यू नो द पीपल आर मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर, तो उन बच्चों की एजुकेशन तो वैसे ही खतरे में है. ये उधर से उधर गए हैं, यहाँ पे जो पढ़ रहे थे वो वहाँ पे पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, वो भी एक सवाल है. बट there is a need to make some constructive steps to work on this education struggle which is coming up. अगर आपको गांव में बच्चों को पढ़ाना है तो उनको या तो स्कूल लाना पड़ेगा, और स्कूल अगर नहीं आएंगे तो आपको इस तरह व्यवस्था करनी होगी कि वो बच्चे आपस में पढ़ सकें. कीपिंग द फिजिकल डिस्टेंस इन माइंड, राइट. आई एम नॉट यूजिंग सोशल डिस्टेंस. इंडिया में सोशल डिस्टेंस कभी खत्म नहीं हुआ, ये फिजिकल डिस्टेंस की बात है, 2 मीटर. वो डिस्टेंस को माइंड में रख के आपको उन बच्चों के साथ काम करना होगा, क्योंकि फोन, इकोनॉमिक सपोर्ट, ये सब हम एक झटके में नहीं दे सकते. जो टीचर उस गांव में है वो उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, चाहे छोटे ग्रुप में हो या बड़े ग्रुप में. हम हमारी बात करते हैं, हम जैसे एक गांव में 30 बच्चों को अगर पढ़ाते हैं तो वी आर ट्राइंग टू मेक सम प्लान कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, चाहे दूर दूर रख के पढ़ाएं. एक बड़ा स्ट्रगल भी आता है जब आप बच्चों को पढ़ाने लगोगे, तो बच्चे आपस में मिलेगी, दोस्त हैं, घर से बाहर निकलेंगे तो मिलना ही है, खेलना भी होगा. ये बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा. बढ़िया. I think next 2-3 months things will be settled down. Normal life. We need to move to normalcy. Normal इस तरह हम घर में बैठ के नहीं जी सकते. We have to live with the virus. राइट. एंड आई थिंक एक चीज मैं अगर बता दूं कि अगर इकोनॉमी गिर जाती है या फिर इकोनॉमी थोड़ी सी प्लमेट करती है, आई थिंक ओवर टाइम आप वापस उसे ऊपर ला सकते हो. या फिर यू नो लाइवलीहुड की अगर पीपल का रोजगार यू नो लूज कर रहे हैं,
तो वो भी आप धीरे धीरे करके आप वापस उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। लेकिन जो एक बच्चे की चाइल्डहुड होती है, या फिर स्कूल में बस पढ़ाई करने नहीं जाते, आप सोशल लाइफ सीखते हो, सोशल स्किल्स, जो कि एक दूसरे से बात कैसे करना, ग्रुप मेंटालिटी कैसे होती है, आप वो सोशल स्किल्स सीखते हो जो कि कहीं और मिलेगा ही नहीं आपको। कॉलेज में या फिर स्कूल्स में ऐसा सोशल स्किल सेट आपको बिल्ड करने का मिलता है जो कि वापस कभी आता नहीं है। आई थिंक विच इज़ वाई आप बहुत सारे बोलते हैं कि कॉलेज का फेयरवेल इज द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस देयर इज, बिकॉज यू से फाइनल गुड बाय टू द गुड लाइफ बेसिकली। So I think I guess this is a call to action. If there are any other startups, edutech startups, I think there's a good opportunity for us to stop pursuing profits and furthering the urban education. But I think through private entities, agar if we can enter into rural groups and if we persuade the government, definitely there is money and there are resources. It's just that the people in between जो कि ये दोनों को connect कर सकते हैं. I think the startups can be, and the enthusiasm among startups and the people working at these edutech startups, I think वो एक बहुत ही powerful चीज हो सकती है that we can to bring back up the education sector through physical distancing, not social distancing, physical distancing as you said. Great. Anita ji का एक comment था. She says India has no place for social distancing due to large population. Yeah, I mean, I don't think nobody has stopped being social. We just have been, as Aniv ji said, physical distance maintain कर रहे हैं, and social distancing. This podcast is pretty evident कि अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, and 3 of us, actually 4 of us, are in a call face to face, and every day बहुत इतने लोगों से हम बात करते रहते हैं Zoom के through या कहीं से भी. I think social distancing नहीं हुआ, as Aniv ji said, physical distancing हुआ. But I do hope everybody gets out of this safe and secure, and we emerge victorious, and things do get back to normal. हनीफ जी, आप जो रूरल एरियाज में काम करते हैं, जो कि गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन के रिगार्डिंग, आई थिंक इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, which I think pretty evident, या फिर एक टबू टॉपिक भी माना जाता है, some people shy away from talking about this topic, जो कि पेरेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस. क्योंकि अभी भी मैं एक दोस्त से बात कर रहा हूँ, शी इज़ बोर्न इन पंजाब आई थिंक, एंड शी लिव्स इन दिल्ली, लेकिन फिर भी हर पेरेंट्स आर स्टिल थिंकिंग अबाउट मैरिंग एंड मैरिज और एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बाद इमीडिएटली शादी कर दो, भेज दो. तो आई थिंक अर्बन एरिया में भी अभी भी ये प्रॉब्लम है, तो रूरल में थिंक आदित्य हैज़ अ स्टोरी रिगार्डिंग दैट. अगर आदित्य बता सकते हैं इसके बाद, लड़कियों को अपॉर्चुनिटी अगर दे भी देते हैं तो उसमें अब्रप्टली रोक देते हैं, या फिर 12th के बाद या 10th के बाद इमीडिएटली फिर जाके शादी करो या फिर घर पे कुछ काम करो, वैसा कर देते हैं, तो उनका रोक लगा देते हैं. तो आप पेरेंट एजुकेशन और अवेयरनेस कैसे टैकल करते हो? पेरेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस, तो देखो, व्हाई वी आर वर्किंग विद गर्ल चाइल्ड, यही लड़की आगे जाके माँ बनेगी, आगे जाके एक किसी की वाइफ बनेगी, यही आगे जाके दादी बनेगी, है ना. और जब आप महिलाओं के साथ काम करते हो तो महिला जिस तरह चेंज ला सकती है अपने परिवार में, अगर उसके पास वो बोलने की राइट है, बोलने में वो कंफर्टेबल है, उन्हें पता है, और जब वो बोलती हैं तो जो चेंज बच्चे में आता है वो और कोई ला नहीं सकता इतना इजीली, है ना. माँ आसपास होती है. दूसरी चीज, parent education and awareness की we are talking, right? So if I talk about my area where we work, we always get in connect with those parents whose children are studying with us. The girls are studying. हम उनको ये भी बताते हैं कि आपकी बच्ची क्या पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, क्यों पढ़ रही है ना, उसका पढ़ना क्यों जरूरी है. हम उनको बुलाते भी हैं, साथ में काम भी करते हैं, उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, कैसे आगे जाके इस बच्ची को फायदा करेगा. There are a lot of story where we work that from the villages where even a single girl was not able to do 10th or 12th. They did 12th, they went on doing ITI, nursing courses, and they became nurses. They got married, but they are still doing whatever they want to do. इस तरह की stories हैं. या you said कि इतना easy नहीं है change लाना. वो parents 10वीं के बाद सोचेंगे कि इस बच्ची की शादी कर देते हैं, हमारी चिंता खत्म हो. जब उनसे बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती है सामने. एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी आता है कि इसको अभी शादी नहीं करेंगे तो बाद में ज्यादा पैसे लगेंगे.
बट जब लड़की पढ़ती है, स्कूल जाती है, 5वीं तक हमारे साथ पढ़ती है फ्रॉम फॉर प्राइमरी एजुकेशन, देन शी वेंट ऑन टू स्कूल, डू सम मोर स्टडी। बेसिकली जब 10वीं के बाद वो और आगे पढ़ना चाहती है, क्योंकि देयर आर सो मेनी पॉलिसीज। आप अगर एक ट्राइबल बच्चे की बात करो तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप की पॉलिसी है, माइनॉरिटी के लिए भी स्कॉलरशिप की पॉलिसी है, बाकी जगह भी तरह तरह की स्कॉलरशिप मिलती है। अगर लड़की चाहे कि वो पढ़ना चाहती है और अगर उसको आगे बढ़ना है तो वो स्कॉलरशिप उसे मिलेगी। जब स्कॉलरशिप मिलती है तो माँ बाप को भी लगता है कि इकोनॉमिक लेवल पे हमें कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं आ रहा है, तो वो आगे पढ़ती है बच्ची। पहली चीज। और जब माँ बाप को लगता है कि ये आगे जाके कुछ कर सकती है, तो वही माँ बाप, पास वाले माँ बाप को भी बताते हैं कि हमारी बच्ची नहीं, क्या आपकी बच्ची भी आगे करेगी। तो एक तार से एक तार जुड़ता जाता है ना, पीयर टू पीयर टू पीयर टू पीयर। एक एक गांव में एक परिवार अगर बदल गया, उसने बोला मैं मेरी बच्ची की चाइल्ड मैरिज नहीं करूंगा, तो वही परिवार बाकियों को भी चेंज करता है। पर वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ा प्ले है, कि जातियों की जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है ना, एक दूसरे से जो डिस्टेंसिंग होती है, उसमें फिर आपका सोशल, आपका इमोशनल, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत काम करता है। बट या ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट now girls are doing much better than what was happening 40 years back. आज लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं, चाहे उसका परसेंटेज कम हो, somewhere we are able to move up. ये बहुत बड़ा आइसबर्ग है, इसमें easily we won't be able to reach the vision where we want to reach. But yeah, parents are playing a major role, and if they are agree, then things will be sorted for one family at least. एंड अभी हम ITI के 2 ITI में आई थिंक टोटल 6 गर्ल बैचेस से हम लोग काम कर रहे हैं, दैट इज बिल्डिंग एन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एंड इवेंचुअली ट्राइंग टू मेक देम एंटरप्रेन्योर्स देमसेल्व्स। अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है एंड आई थिंक वी आर एक्सट्रीमली प्राउड एंड हैप्पी टू से दैट 90 to 95% of the students that are actively participating and actively making progress on a daily basis are female students. I mean, statistically that was expected, lekin the enthusiasm and the the support participation shown by the students, like हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. I can't speak for the others, but बहुत अच्छा लग रहा है. Aditya, if you want to, I know you have another question. So before you ask that question, अगर आप वो story share कर सकते हो regarding your experience in Rajasthan. Sure. So I keep having these experiences, even as a startup, actually, coincidentally, शुरुआत तो coincidentally हुई and then we started doing it. मेरा शुरुआत में थिंकिंग था कि मैं हमेशा प्राइवेट स्कूल्स में ही काम करूंगा, बिकॉज मुझे पता नहीं था गवर्नमेंट एजुकेशन में क्या स्कोप है क्या नहीं है. मैं एज एन इंजीनियर कॉलेज से निकला था, तो एजुकेशन के बारे में कोई आइडिया मुझे था नहीं उतना. धीरे धीरे हमें गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिला, एनजीओ के साथ काम करने का मौका मिला, और मैंने बहुत सारे गांव में स्कूल्स में करियर काउंसलिंग करी, और उसके बाद तो अभी ITI और कॉलेजेस में भी हमारा काम शुरू हुआ. तो राजस्थान में एक बार मैं गांव में कर रहा था काउंसलिंग, सो इट वाज अ वन ऑफ सेशन टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू टेक अप ऑल्टरनेट करियर्स. तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, बिकॉज इवन दो दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आई एम नॉट श्योर वेदर यू विल सर्च इट और नॉट, सो इट्स गुड दैट सिंस आई एम हियर आप लिख लो. तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि आप अपने करियर्स के नाम बताओ जिनके बारे में आप जानना चाहते हो. आई राइट देम ऑन द बोर्ड. मैं एक वर्ड क्लाउड बनाऊंगा और फिर मैं सबके बारे में डिस्क्राइब करूंगा कि आप 12वीं के बाद पायलट कैसे बन सकते हो, या फिर आप फिल्म एक्टर कैसे बन सकते हो. तो अलग अलग चीजें. तो ऐसे ही कुछ गर्ल स्टूडेंट्स ने कहा सर फिल्म एक्टर, फिल्म एंड सिनेमा. मैंने लिख दिया बोर्ड पे. फिर कह रही सर मिटा दो. तो मैं चौंक गया कि एकदम से इन्होंने डर के ऐसे कि बोला मिटा दो. तो मैंने इनसे पूछा कि मिटा क्यों दूं, मतलब आपको फिल्म में नहीं जाना, आपके पेरेंट्स मना करेंगे क्या? कहती नहीं सर, सब चीजें में मना करेंगे. मैंने कहा सब चीजों में मतलब? कहते सर कोई करियर में मना करेंगे, हमें 12th तक की बड़ी मुश्किल हुई है पहुंचने में, अब तो शादी करनी है इसके बाद. अब होता है ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की. मैं सोचने लग गया मैं आया ही क्यों हूँ यहाँ पे, अगर इनको 12th के बाद शादी ही करनी है और इनको फोर्स करके, ऐसा भी नहीं कि उनका मन है, वो फोर्स करके उनको शादी कराई जा रही है, तो मेरा क्या फायदा होने का? मैं तो इनको फिर झूठ झूठ का बता के चले जाऊंगा, कोई फायदा नहीं. तो तब से कोशिश मेरी हमेशा से ये रही है कि मैं स्टूडेंट्स को ये समझा सकूं कि
वो वही करे जो उनका मन है। अगर उनका शादी करने का मन है, गो अहेड, लेकिन अगर शादी करने का मन नहीं है, अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करो, डिबेट करो। मैं तो इनफैक्ट इतना भी कहता हूँ कि अगर आपका मन नहीं है तो एक बार की लड़ाई बेहतर है पूरी जिंदगी की रिग्रेट से। क्योंकि अगर आप लगे रहोगे अपने पेरेंट्स को समझाने में, उनकी बात सुनोगे, एक प्रॉपर डिबेट करोगे, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ उनको सुनाई दो, मतलब उनसे भी सुनो, उनकी बातें अगर आपको लॉजिकल लगे आप उनकी बातों को फॉलो करो। लेकिन अगर आप वो लॉजिक के तराजू से तोलो और एक ऐसा डायलॉग इनिशिएट करो, ये बहुत बेटर है वो 1-2 साल का झगड़ा जिसके बाद चीजें रिजॉल्व हो जाए, एज कम्पेयर टू वो 10-20-30 साल का रिग्रेट कि मैंने काश उस टाइम पे बोलने की हिम्मत कर दी होती। दिन में 8-8 घंटे काम करना है, अपना करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ किस्से होते रहते हैं जहां पर मुझे अभी भी लगता है कि तो वही एडुकेशन इज नॉट डूइंग फाइन मेरे दिमाग में बार बार रिंग करता रहता है, नहीं हमें बहुत कुछ करना है अभी भी। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस का। सो अच्छा, पहले मैं कमेंट पढ़ता हूँ फिर क्वेश्चन। सो वैभव पारेख कहते हैं, देयर इज अ स्कोप फॉर इनोवेशन इन रूरल एरियाज, बट व्हाट इज नेसेसरी इज द पॉलिटिकल विल टू रोल आउट एंड सपोर्ट इनोवेशंस। मैं टोटली अग्री करता हूँ आपसे वैभव। आपका क्या कहना है हनीफ कि कितना हद तक इनोवेशन हम सपोर्ट कर रहे हैं अभी रूरल एरियाज में, कितने हद तक हमें करना चाहिए? वैभव पारिक, yeah. So I know this guy. अच्छा। So वैभव, क्या इनोवेशन, देखो इनोवेशन करने के लिए हर एरिया के लिए इनोवेशन अलग हो सकता है। एक आप एक डिस्ट्रिक्ट लोगे, एक स्टेट लोगे और एक गांव लोगे, हर जगह के लिए इनोवेशन अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको बेसिकली कॉन्टेक्चुअल इनोवेशन की जरूरत है, वो छोटे छोटे इनोवेशन जो उस एरिया को सपोर्ट करे। छोटी सी बात जो आप कर रहे थे उस समय, वो पेड़ पे पढ़ाने वाली है ना। अभी जो मैंने एक बात करी थी, बहुत छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि अभी सब ये 2 मीटर की डिस्टेंस की बात करते हैं, 2 मीटर दूर रह के पढ़ो। पता नहीं 2 मीटर दूर रह के हम ग्रुप स्टडी कैसे करेंगे, वो बात अलग है। पर 2 मीटर दूर रह के पढ़ो, एक छोटे छोटे ग्रुप में पढ़ो, ये एक अलग एक तरीका है। दूसरा ये है कि आपको कॉन्टेक्स्ट में क्या नीड है, उस नीड पे बेस करके आपको कोई सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन अगर बनाया जाए तो वो इजी होता है वहाँ पे एक्वायर करने के लिए। मैं कोई भी इनोवेशन तब तक नहीं बोल सकता जब तक मैं उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानता, अच्छे से समझता नहीं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, नॉट द इशू। इशू इज the children are not getting education right now, but the problem can be different. One place the problem is they don't have internet, one place the problem is they don't have a smartphone. तो उसका अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है। पर जो वैभव ने बोला है कि इनोवेशंस की जरूरत है, और हर जगह इनोवेशन अलग होगा, नीड के हिसाब से इनोवेशन होना चाहिए, ना कि मेरे हिसाब से मैं जो समझता हूँ वो सही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जो जरूरत है उस हिसाब से इनोवेशन बनाओगे तो वो अच्छा चलेगा। जैसे I will not go politically here. I just want to see one thing. There are so many policies comes up. पॉलिसी हम बैठते हैं, हमारी इच्छा होती है, वो बन जाती है। ठीक है, पहले पॉलिसी बनती है, बाद में एविडेंस आते हैं। इस पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस की जरूरत है, वो एविडेंस लेके आओ। तो ऐसा नहीं है, पहले एविडेंस लाओ, उस पे बेस करके पॉलिसी बनाई जाए। And that policy can be changed as per the area. Same goes to education, same goes to anything. That's what I believe. बिल्कुल। और आई थिंक ये जो लोग, मतलब कहीं ना कहीं मैं इस पे एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि हनीफ ने कहा, आप नीड देखिए फिर इनोवेशन अप्लाई कीजिए। हमारे केस में हमें बहुत बार, क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखने को मिलता है कि वेयर इज द एआई, वेयर इज द आईओटी, और मेरे को सुन के कभी कभी लगता है कि यार आप एक बार गाँव जाकर देखो प्लीज। आप जाके देखोगे तो हमारी 70% ऑडियंस के पास तो वो इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है जिससे हम बात कर सके। इनफैक्ट हम जो कि अभी कह सकते हैं कि अर्बन मिडिल क्लास है, उससे थोड़ा ऊपर है, अभी हमारे नेट में इश्यूज आ जाते हैं। अभी आज शुरू में मेरे नेट में थोड़े इश्यूज आए, बीच में हनीफ के नेट में थोड़े इश्यूज आए, जबकि हम दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, हमारे पास नेट के पैसे है देने को अच्छे खासे, फिर भी ये दिक्कत है। तो तब भी ये हो रहा है। और गांव में तो होना ही है क्योंकि वो रिमोट एरिया है, तो जस्ट बाय एरिया का रिमोटनेस वो इंटरनेट का इशू आ सकता है, प्लस ऑब्वियसली द स्ट्रगल फॉर मनी, द स्ट्रगल फॉर फाइनेंसेस। तो इसके चलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी में ये नहीं कह रहा खराब चीज है, मैं कभी, इनफैक्ट हम भी कोशिश करेंगे इसको अपने सोल्यूशंस में जितना हो सके ज्यादा इंकॉर्पोरेट करने की। हमारे कुछ सोल्यूशंस में ये ऑलरेडी इंकॉर्पोरेटेड है, बट कभी कभी सोचकर लगता है कि यार हर जगह यही क्यों अप्लाई करना।
मतलब हमारी क्या सोच यही तक लिमिट हो गया है कि कोई भी चीज लो उसमें डिजिटल. Is this only innovation? I totally agree with Hanif. That is not exactly the same thing as innovation. Innovation जरूरी नहीं है रॉकेट साइंस हो, वहां के लोगों के काम आनी चाहिए बस. So it can be incremental innovation as well. हनीफ, एक और सवाल है ब्रिजेश प्रसाद का. So I'm pretty sure you know him because I know that he's from ISDM and I met him during Jagriti Yatra. So hope you're doing good, Yeah. Brijesh. He asks, what about the future reforms in school education system? What exactly as actionable steps would you recommend? What kind of adaptability are you envisioning? ये दोनों भाई एक तरीके का सवाल पूछते हैं. So Vijay sir, the same thing which I said for the question which came from Weber. The reforms in education system. The one thing, as I said before, कि हमको उस तरह के लोगों की जरूरत है जो बच्चों की नीड को समझ सके, बच्चा कैसे सीखता है ये समझ सके और खुद चेंज होने के लिए तैयार हो. ऐसा नहीं है कि जो मुझे आता है मैं बच्चे को सिखा दूं. बच्चा सीखेगा कैसे ये हमको समझ में आना चाहिए. तो वो अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं बच्चे को जरूर सिखा पाऊंगा. पहले तो ये एटीट्यूड वी नीड टू बिल्ड इन द टीचर्स, नॉट ओनली इन अर्बन एरिया, एवरीवेयर. ये एटीट्यूड इज द एटीट्यूड टू अंडरस्टैंड. चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग इज गोइंग डाउन. बोला पहले वाले जो टीचर्स होते थे वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझते थे. अभी वाले तो कुछ लोग तो नौकरी कर रहे हैं. ऐसा होना नहीं चाहिए. तो बेसिकली ये होना चाहिए कि वो बच्चे की नीड को समझे और उस नीड के ऊपर काम करे. तो बच्चे की एजुकेशन की लाइफ को इंजॉयमेंट बनाने की कोशिश करें. अगर इन दोनों पे काम होगा तो बाकी चीजें अपने आप आएगी. दूसरी चीज डिजिटल वर्ल्ड एंड कोरोना वायरस. ये तो ऐसा समय है जब बच्चा अकेला बैठ के सीखने वाला है. तो पहले बात आई थी स्कूल इसलिए भी जाना होता है ताकि दोस्त बने, हमें ये पता लगे दुनिया कैसी है. और वही अगर नहीं होगा तो आप क्या कौन से कॉन्टेक्स्ट को कैसे सीखोगे. तो रिफॉर्म, अभी रिफॉर्म की बात नहीं करते. अभी तो पहले बच्चों को स्कूल लाने की कोशिश करते हैं. जिस एरा से हम गुजर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि बच्चे अर्बन एरिया में भी मुश्किल होगा स्कूल आना. माँ सोचेंगे हम घर पे पढ़ा लेते हैं. क्योंकि आई विल जस्ट शेयर वन थिंग. डिजिटल एजुकेशन अभी एक ऑप्शन है अर्बन एरिया के उन बच्चों के लिए जिनके पास सारी सुविधाएं हैं. उनके ऊपर इसका हेल्थ इम्पैक्ट आने वाला है. दैट इज वेरी डेंजरस, राइट. वो स्कूल में बैठ के जब टीचर सामने पढ़ाए ना, वो सबसे अच्छा रिफॉर्म है. चाहे लेस रिसोर्सेज अवेलेबल हो, पेड़ पे लिख के पढ़ाओगे पर बच्चे को मजा आएगा पढ़ने में अगर उसको उसके हिसाब से पढ़ाते हैं. पहला रिफॉर्म तो ये है कि बच्चे को खुद को समझ के आप पढ़ाओ तो ज्यादा मजा आता है. दूसरी चीज, विजेश का एक क्वेश्चन था कि आप कैसे इसको एडेप्टेबल बनाओगे चीज. और एडेप्टेबल बनाने के लिए आपको सामने वाले को पहले समझाना पड़ता है कि ये चीज क्या है, ये इसके हिसाब से है या नहीं. उसके हिसाब से है तो वो बहुत आसानी से समझ लेंगे. नहीं है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि ये क्यों जरूरी है, ये कैसे होगा, इसमें क्या क्या होता है, कौन करेगा, इसके क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है. We always talk about the immediate outcome of whatever we do. Right? We never talk about the long-term outcome of anything. अगर हम लॉन्ग टर्म आउटकम को फोकस करेंगे तो लोगों को ये भी समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म आउटकम पे पहुंचने के लिए जरिए कौन कौन से हैं. हम पहले ये सोचते हैं कि करना क्या है, फिर आउटकम सोचते हैं. नहीं, पहले आउटकम सोचो फिर ये सोचो कि करना कैसे. तो वो वहाँ पे फिर एडेप्टेबिलिटी अपने आप बीच में आएगी कि लोगों को ये कैसे समझाना है. बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट द आइसबर्ग, 90% पीपल सी ओनली द टिप ऑफ आइसबर्ग. और उसके मेंटल मॉडल को समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसी से आपको सामने वाले की समझ मिलती है. जब आपको वो समझ मिलती है सब कुछ एडेप्टेबल होता जाता है. Rest, Brijesh, we can talk on in person. Definitely. I think बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने. और आई थिंक आज के डिस्कशन का हाईलाइट ये रहा है, हमने शुरू किया था बाय डिस्कसिंग करियर्स इन एजुकेशन और कहीं ना कहीं वो डिस्कशन अपने आप ही ऑडियंस के सवालों और हमारी डिस्कशन के फ्लो के हिसाब से शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स व्हाट ऑल चेंजेस शुड वी एम फॉर इन द एजुकेशन इकोसिस्टम और उसकी तरफ क्या काम हो रहा है, क्या होना चाहिए, इस पर हमारा एक ओपिनियन. तो आप भी अपने ओपिनियन प्लीज कमेंट्स में एक्सप्रेस कीजिए. इट वाज अ वेरी एनरिचिंग डिस्कशन विद हनीफ एंड सिंस 7 बज चुके हैं दोस्तों, सो आई वुड
request Samant to do the closing address. And thank you so much, Hani, for joining us for this podcast. I think it was an amazing experience. बहुत ही एक gradual development हुआ इसमें कि we were talking about different things in education. और बहुत enriching था ये conversation. I think it was very complete in the sense कि हम भी education industry से ही belong करते हैं. So I think बहुत कुछ सीखने के लिए था हमारे लिए भी. And I'm pretty sure and I'm hopeful that audience के लिए भी काफी कुछ सीखने को था. Thank you so much. Thank you for inviting. One thing I can just say कि I will go to this NEP, new education policy, and see where we are, where we need to go. Right. मैं थोड़े ऑडियंस कमेंट्स पढ़ लेता हूँ. आई थिंक सो सॉरी गाइस, वैसे मेरे एंड पे आई डोंट नो क्या हो गया था, थोड़े क्वेश्चंस और कमेंट्स कंप्लीटली गायब हो गए थे. आई थिंक विच इज वाई ब्रिजेश जी का क्वेश्चन और वैभव का क्वेश्चन कमेंट में पढ़ नहीं पाया पहले. सो लेट्स सी. हाँ, पहले अनीता जी ने बताया कि स्टार्टअप्स कैन डू अमेजिंग जॉब बाय ब्रिंगिंग गैप. आई थिंक रिफरिंग बैक टू व्हेन वी टॉक्ड अबाउट हाउ स्टार्टअप्स कैन start bridging the gap between the resources and the education and the rural people, students of rural areas. Great. DS Paliwal बता रहे हैं कि education is part and parcel of socio-economic system, so every educator must be committed for betterment of the society too. Right. So guys, thank you so much. Firstly, Aditya and Pragya, thank you for taking part, and the audience, thank you for your questions, comments, and insight. And of course, Haniji, thank you so much for taking time to speak with us. बहुत ही मजा आया. I think even me, like I said, I haven't been involved in a lot of rural schools. क्योंकि obviously I wasn't there when Aditya went to those schools in Rajasthan and Haryana. But hopefully I do go there somewhere and interact with the students, definitely. But thank you, Hanif ji. It was like a very enriching experience, and we really did get to learn a lot, and the perspectives of rural students and the people over there. So thank you so much. So guys, stay safe, stay home, wash your hands, and see you tomorrow 6 p.m. same time with a different guest. Like and follow our Facebook page and turn on post notifications to get notified when we do go live. And also subscribe to our YouTube channel to catch our live streams on our entrepreneur project. And take care now. Bye-bye. See you tomorrow.